Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द यान बाजार। हमने ये पॉडकास्ट चालू किया है जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेंज मेकर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव और इंसाइट्स आपके सामने लाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि उनकी जर्नी से आप सब इंस्पायर होंगे। आज हमारे साथ है इचल करंजी से कैन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर मिस्टर निकुंज जी बगड़िया। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इनका टोटल एनुअल ग्रे फैब्रिक प्रोडक्शन अप्रॉक्स 5 करोड़ मीटर है एंड ये कुछ 15 कंट्रीज में लगभग एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर अप्रॉक्स 250 करोड़ से ज़्यादा है और 2016 और 2019 में इनकी कंपनी को प्रेस्टिजियस टेक्सप्रोसिल अवार्ड फॉर द हाईएस्ट ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया का मिला है। इसके अलावा पिछले साल 2019 में इनको हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एमएसएमई सेक्टर का भी अवार्ड मिला है। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मिस्टर निकुंज जी बगड़िया के साथ। गुड मॉर्निंग निकुंज जी। Good morning, Pratik. How are you? गुड सर, हाउ आर यू? Good, yeah. Never been better. I think you're getting a lot of time to read and all, na? Phenomenal, yeah. Phenomenal. हाँ. Amazing. I mean, caught up on like almost 6 months of reading in the last 3-4 weeks. So, pretty happy about it. Anything interesting जो आपने इन दिनों में पढ़ा? Any good book या कोई article? Articles तो काफी पढ़े. I think one very interesting podcast I heard Manish Sabharwal, Team Lees. Okay. He was on a webinar for about an hour and 15 minutes. I think that guy, I think, is simply phenomenal. The worldview that he has, and right from the granular to the holistic 360-degree view, I had to see that podcast 2-3 times, sit down with a piece of paper and make notes. Phenomenal information. तो जो माइंडसेट है वो तभी आता है जब आप एक स्लो डाउन फेस करते हो। ग्रोथ स्टेज पे तो कोई वो नॉर्मली लोगों को वो माइंडसेट आता नहीं है। तो वही। और अच्छा, कल रात में मैंने एक बहुत अच्छा ये पढ़ा which really fired me up. He said कि if you look at US history, all the fortunes have been made post recession. The biggest challenge at this point is going to be liquidity. Correct. Liquidity and solvency. Now with big players, liquidity कहाँ से आती है मार्केट में? There are only 3 sources of liquidity. One is the bank, one is your private capital, and then is your vendors. Correct. आपके suppliers. अब ये तीनों साइड से लिक्विडिटी निकालने की कैपेबिलिटी बड़े बिजनेस में ज्यादा है, छोटे बिजनेस में कम है। जो कंपनीज ओवर लेवरेज्ड है वो छोटी है कि बड़ी है, सबको ही प्रॉब्लम है। irrespective of the size, all of them are going to face immense challenge. But keeping all things same, capability of a bigger firm to come out would also be larger. I would feel कि again it is management to management, promoter to promoter, value to value. सब depend करेगा. You cannot generalize, but still I would feel larger companies would still have a better capability because they have the teams, they have the talent, they have the resources to tap at this point. And with loosening up of liquidity by all governments across the world, the companies which are internationally established, they have a big potential to leverage internationally also. So I think that is also true. It will depend a lot on company to company, but all things being equal, I still feel larger corporates should be in a better position to generate liquidity to come out of this crisis. ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल था कि जो थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी कंपनी कैन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बता पाओ। आप क्या करते हो, क्या बनाते हो? हम कैन एंटरप्राइजेस इचल करंजी में बेसिकली दिस इज अ सेकंड जनरेशन एंटरप्राइज। हम लोग का फैमिली पार्टनरशिप फर्म वाज स्टार्टेड बाय माय फादर व्हेन ही मूव्ड टू इचल करंजी इन 1977। सो हम लोग का पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, धोती का, शर्टिंग शूटिंग का, एंड काफी अलग अलग बिजनेसेस थे। एंड देन कैन एंटरप्राइज फर्म हमने पार्टनरशिप फर्म छोड़ के प्राइवेट लिमिटेड चालू की 2001 में। Then a few years down the line, 2009, my father passed away,
and I took over the whole responsibility. And 2010 onwards, it has been a different journey altogether. 2013 was when we upgraded our plant to the latest airjet plant, and real growth has happened 2013 post. So 2014 end, we started our first exports, and from 2014 to 2020, I think it's been a very, very high momentum. We've built a very strong, big team. The numbers have been exciting. The volume that we have in 6 years' time, I think we have grown almost 10x. मतलब मेन जर्नी अपना जो रहा है वो 2013 से 2020 रहा है. Yeah, that has been the main journey. उसके पहले it has been the preparation समझो, learning समझो. Learning तो अभी भी चल ही रही है, but the real business started 2013 onwards. Okay. और आपने सर कब ज्वाइन किया था? I joined after college in 2000. तब बिजनेस बड़ा अलग तरह का था. तभी हम लोग के लूम अलग थे. तभी धोती का, शूटिंग शर्टिंग का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो करते थे हम लोग. हाँ, तो जैसे अपना जो एक टाइम रहा है, समझ लो मेन मैं बोलूंगा कि 2010 से 2020 का जो एक टाइम था, हाँ, जिसमें मेन कैनन एंटरप्राइज एक तरह से चालू हुआ, मॉडर्न मशीनरी आया और ग्रो हुआ. बराबर. तो आपके मेन चैलेंजेस, बिजनेस चैलेंजेस क्या थे और आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया? बिजनेस चैलेंजेस जो तरह से मैं देखता हूँ, दो ही चीज होती है. बॉटलनेक आता है, एक आता है कैपिटल पे और दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स पे. तो ये दो ही आपके बेसिकली बॉटलनेक्स होते हैं बिजनेस में, चैलेंजेस होते हैं. तो कैपिटल के जो चैलेंजेस है वो एसेंशियली आपको फुलफिल करने पड़ते हैं बैंकिंग के साइड से. अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी बना के मार्केट में, जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी अगर स्ट्रांग है तो आपका वेंडर सपोर्ट अच्छा मिल जाता है. ये दो चीज से हम लोग वो कंस्ट्रेंट दूर कर पाए. और एचआर का जो टीम का जो चैलेंज है, टीम का चैलेंज तो यू हैव टू स्पेंड टाइम. काफी समय लगता है, मेहनत लगती है, धीरे धीरे करके टीम को बनाना पड़ता है. इट इज लाइक पौधा लगाते हो तो बीज लगाना पड़ता है, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर पानी दोगे, खाद दोगे, एंड इट इज अ एवरी डे प्रोसेस. हर रोज आपको टीम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड स्पेशली मेरे जैसे केस में जहाँ पे फैमिली का कोई दूसरा मेंबर नहीं है बिजनेस में, और मुझे मालूम है कि दूर दूर तक कोई फैमिली मेंबर बिजनेस में आने वाला नहीं है मेरे. तो आपको खुद को टीम इतनी अच्छी, स्ट्रांग और क्लोज टीम बनानी पड़ेगी कि वो टीम के भरोसे ही आप आगे ग्रो कर पाओ. तो टीम में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते गए, हम लोग ढूंढते गए अच्छी टीम. चैलेंजेस एसेंशियली जितने भी होते हैं वो सब इंटरनल होते हैं. एक्सटर्नल तो कोई चैलेंज ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज मार्केट सबके लिए वही है, प्रोडक्ट सबके लिए वही है, कस्टमर्स वही है मार्केट में. तो दोस चैलेंजेस रिमेन द सेम फॉर एवरीबडी. चैलेंजेस आते हैं इंटरनल. हाउ डू वी बिल्ड आवरसेल्व्स टू हैंडल दिस एक्सटर्नल चैलेंजेस. आई थिंक ये जो कल्चर जो आपने बिल्ड किया है वो बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द कीज इन योर सक्सेस. एंड आपने अपनी कंपनी में वैल्यूज और कल्चर बहुत अच्छे से बिल्ड किए हुए हैं. Definitely, I would agree, and I think we've started on that path. I think we are in अभी तो इन्फेंसी में है, शुरू हुआ है अभी, बट यस आगे चल के इसी को और स्ट्रॉन्ग करना है. तो आपके हिसाब से सर मेन 2 या 3 अगर आप अपने कंपनी के वैल्यूज या कल्चर्स बता पाओ तो, कि वो क्या है जिससे आपकी कंपनी इतनी ग्रो की है. बेसिकली दो चीजें होती है. एक होता है सबसे पहले कंपनी का एग्जिस्टेंस है अराउंड द कस्टमर. तो हम लोग ने सब अक्रॉस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं हूँ, मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्शन हेड है, डिस्पैच है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक्स है, सबको ये बोला है इट इज बिल्ट अराउंड द कस्टमर. कस्टमर फोकस इज द की. अगर कस्टमर होगा तो बिजनेस होगा. तो लेट अस बिल्ड आवर वर्किंग around the customer. Values are built around ourselves internally, around what I personally believe in. But working culture जो है, that is पूरा aligned to the customer needs. Then internal values में कुछ चीजें बड़ी बेसिक सी है, बहुत कोई हाई फंडू नहीं होती है, बेसिक चीजें है. यू हैव हम लोग के एथिक्स, इंटीग्रिटी, मॉरल्स, कमिटमेंट, ये जो बेसिक चीजें है दे हैव टू बी इन प्लेस. एंड देन इट स्टार्ट्स. ये बेसिक चीजें शुरुआत खुद से होती है. मैं कस्टमर को झूठ बोलूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा आदमी कस्टमर को सही बोलेगा, तो वो तो होना नहीं है. अगर मैं कस्टमर से कुछ छुपा रहा हूँ, उसको झूठ बोल रहा हूँ, और फिर मैं मेरे आदमी को चिल्ला के बोलूंगा जोर से कि नहीं भाई तू उसको सही बता, तो पॉसिबल नहीं है. तो ये बेसिक चीजें है. बाकी कोई बहुत आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बट ये बेसिक चीजें है कि ट्रस्ट
very high on trust within the people. तो हमारे आपस में जो टीम है सब everybody falls back on each other. अभी भी ये कंडीशन है कि टीम मेंबर्स का चला के फोन आता है कि सर आपसे बात नहीं हुई है, बोर हो रहे हैं, कुछ बताइए क्या करें. सब एक दूसरे को फोन करके बात कर रहे हैं. तो वन पार्ट ऑफ द सीनियर टीम इज ऑलरेडी ऑन एवरीडे ट्रेनिंग. हम लोग ने एक ट्रेनर लगा रखा है, रोज 2 घंटे का 3 घंटे का हमारा सेशन चल रहा है एक वन पार्ट ऑफ द बिजनेस का. तो 8-10 लोग हैं हम लोग, उसमें रोज ट्रेनिंग हो रही है. दूसरे लोग हैं उनको ऑलरेडी सबको बोल दिया भाई जिसको ऑनलाइन प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम अटेंड करना है पेड है तो कंपनी विल पे फॉर इट. आप लोग प्लीज अटेंड करिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. अटेंड करके ऑफिस में आके हमारे को बताइएगा आपने क्या सीखा. द मोमेंट यू डू दैट हमको ये कॉन्फिडेंस है कि आपने कुछ सीखा है. राइट. आपने जैसे सर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात की कि कस्टमर इज की. मुझे ध्यान है इन माय अर्ली कॉलेज डेज ना हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी. दिस एयरलाइन कंपनी कॉल्ड SAS, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन सिस्टम. द कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पीरियड. बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही थी कंपनी. और वो टाइम पे उनके एक नए CEO आए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनका नाम था जैन काल्जॉन. उन्होंने सबसे बड़ा चेंज ये लाया था कि वो बोले आज टॉप मैनेजमेंट कितना भी चाहे कि बिजनेस इस तरह से हो या कस्टमर्स को किस तरह से ट्रीट करे, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में हमेशा फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज ही रहते हैं. एंड उनका ये मानना था कि आज एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसा है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस इज द की. आज कस्टमर अगर एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है एयरलाइन एम्प्लॉय जो एक्चुअली उसका बुक ये चेक इन कर रहा है. फिर के अंदर एयर होस्टेस आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं. तो ही मेड श्योर कि फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज जो उनके ग्राउंड स्टाफ है वो इतना आपको ट्रीट करे कि अगर वो कस्टमर अगर 10 एयरलाइन से फ्लाई कर रहा है ना, he should feel something extraordinary about the experience in the SAS. बराबर है. वेरी ट्रू. बोला. तो सर आपके हिसाब से आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से आपके कस्टमर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस है और आप उसको किस तरह से फुलफिल कर रहे हो या कर पा रहे हो? आई थिंक कस्टमर एक्सपेक्टेशन बेसिक वेरी बेसिक लेवल पे 2 होते हैं which are very clearly spelled out. One is the price and one is the quality. But उसके बाद में एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आज के तारीख में बहुत अहमियत रखती है, इज द टर्न अराउंड टाइम, जिसको हमारी इंडस्ट्री स्पेशली डिसेंट्रलाइज सेक्टर बहुत सीरियसली नहीं लेती है. इज द टर्न अराउंड टाइम. आज के तारीख में टर्न अराउंड टाइम हैज बिकम की टू गेटिंग बिजनेस. मुझे लगता है हमारा 30% बिजनेस सिर्फ इसीलिए आता है कि हम लोग अग्रेसिव डिलीवरीज कोट करते हैं और कर पाते हैं, उसको फुलफिल करते हैं. इसके लिए 30-35% बिजनेस तो सिर्फ वो अग्रेसिव डिलीवरीज हम लोग कोट करते हैं बोल के मिल जाता है हमको. और ये 3 चीजें छोड़ने के बाद में एक चीज होती है जो अनसेड है, कहीं भी स्पेल्ड आउट नहीं होती है, बट वो एक ऐसा तार है ये जो तीनों चीजों को बांधता है. दैट इज द एक्स फैक्टर इज सर्विस. फिर अपने इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में सर्विस क्या होती है? अब सर्विस इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल, इज समथिंग विच इज नॉट सेड बट विच इज फेल्ट बाय द कस्टमर. जैसे हम लोग क्या देखते हैं सर्विस में? द वे यू कम्युनिकेट ऑन द ईमेल, ऑन द फोन. हम लोग के यहाँ पे बेसिक नॉर्म है कि एनी इंक्वायरी दैट कम्स विद इन 1 आवर इट हैज टू बी रिस्पॉन्डेड टू. आप हाँ बोलो, ना बोलो, या ये बोलो कि मैं कल दूंगा, बट 1 घंटे के अंदर उसका जवाब जाना चाहिए. मतलब या तो जवाब या एक्नॉलेजमेंट जाना ही चाहिए. मतलब यू कस्टमर को उसने अगर ब्लाइंड मेल 100 लोगों को भेजा, उसमें से भी अगर आपको मेल आया है तो भी आपका जवाब तो जाना चाहिए. उसके बाद में सिंपल सी चीज होती है एक्सपोर्ट में सर्विस. क्या होता है एक्सपोर्ट में सर्विस? होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन टाइम से जा रहे हैं, प्रॉपर जा रहे हैं, अप्रूवल्स प्रॉपर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में एरर नहीं है, बैंकिंग में एरर नहीं है, आप कस्टमर की हर चीज सुन रहे हो, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सैम्पलिंग है करके दे रहे हो, उनकी इंफॉर्मेशन डेटा इज अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप्स, आप उनके साथ शेयर कर रहे हो. तो ये जो बेसिक चीजें है सर्विस रिलेटेड, ये बहुत अहमियत रखती है, और जिसको हम लोग स्पेशली टेक्सटाइल में तो कोई बॉदर ही नहीं करता है मेरे हिसाब से. और बहुत छोटी छोटी चीजें होती है. हाँ, निटी-ग्रिटीज जो है वो बहुत मायने रखती है. हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर पे बिजनेस होता है डिसेंट्रलाइज में, वो है प्राइस. But price is one part of the whole story. Price, quality, turnaround time, and then service. These are the 4 things which I think a customer needs. Right. मतलब अपने बोल सकते हैं कि वो QCD जो होता है, quality, cost and delivery. And then you add that X factor of service to it. Because I know I have a few very good customers with me, who are with me only because of my service to them, the service on product development,
the service on sampling, the basic service of replying to them in time. They are with us only because they get a response. Along with these three, the fourth factor I feel is equally and more important. तो अपने जैसे सर मतलब मार्केट में इस तरह से कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज कि कंपटीशन इज एक्सट्रीमली हाई, प्लस बिकॉज अपने बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है, स्मॉल प्लेयर्स इतने ज्यादा है कि वो उसने न्यू एंट्रेंस थोड़ा एग्रेसिवली प्राइसिंग भी कोट करके ऑर्डर्स ले लेते हैं. आपके हिसाब से व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड व्हाट इज इट कि कैन एंटरप्राइज को एक अलग सेट करता है कंपटीशन से? फर्स्ट थिंग, यस कंपटीशन बहुत है, बट आई डोंट सी एनी इंडस्ट्री जिसमें कंपटीशन नहीं है. एयरलाइन होगी, ऑनलाइन शॉपिंग होगी, आप कोई भी बिजनेस में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, कंपटीशन हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ. कंपटीशन इज इफ वी फील द कंपटीशन. अगर अपना कंपिटिटिव एज बनाते हैं, जैसे आपका सवाल था कि भाई व्हाट इज इट दैट सेट्स अस अपार्ट. So I think what sets us apart is we are customer oriented. That is the simple, अगर एक लाइन का आंसर तो यही है कि हम लोग बड़े सिंपल है, हमको कोई ज्यादा आता नहीं है, हम बड़ा वी आर नॉट बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं है. हमको सिंपल सी चीज समझती है कि हम लोग कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, और जो भी करते हैं जिससे कस्टमर हमारे से जुड़ा रहे, हम वो काम करते हैं. और एक मेरे को, आपको शायद मैंने कहा, आई हैड शेयर्ड विद यू आल्सो, बट एक मेरे कस्टमर ने मेरे को एक बड़ा सिंपल सा 4 वर्ड्स का प्रिंसिपल बताया था. बोले ये 4 वर्ड्स एक लाइन अगर फॉलो करो तो टेक्सटाइल में आप सक्सेसफुल हो जाते हो. बोला भाई क्या? बोले बहुत सिंपल है, जो बोला वो किया. अगर ये इतने से 4 वर्ड्स आप अगर आपके लाइफ में फॉलो कर सकते हो तो यू आर सक्सेसफुल. राइट. आई थिंक सबसे सिंपल सक्सेस मंत्र है ये, और बहुत इफेक्टिव भी है. या तो बोलो मत, और बोलो तो करो, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा. What sets us apart is only this thing, that we are very customer focused. That is the thing that sets us apart. We are very open. हम लोग हमेशा कभी भी, मेरी टीम मेरे को इनफैक्ट ये बोलती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है मेरा ओपननेस कई बार. माय टीम टेल्स मी कि सर आप हर चीज के लिए हाँ बोल देते हो. उसमें ऐसा होता है कि कई बार 10 चीजें नहीं हाँ बोली, उसमें 1 या 2 चीज बैकफायर कर जाती है बुरी तरह से. उसमें अच्छा खासा कई बार नुकसान लग जाता है. लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा हाँ बोल देता हूँ कि भाई करेंगे. फिर हम बैठ के वर्कआउट करते हैं कैसे करेंगे. तो मेरी टीम हर बार मेरे को बोलती है कि सर आप हमेशा हाँ बोल देते हो. लेकिन वो एक हमारा एडवांटेज भी है. वो हमेशा हाँ बोलने के कारण हमने काफी चीजें ऐसी करी है जो हम लोग नॉर्मली न सोच नहीं पाते कि हम लोग करेंगे. उसके चलते काफी कस्टमर्स नए हमारे जुड़े हैं. तो जैसे सर आपने लगभग 2000 में ये अपना बिजनेस ज्वाइन किया था, तो आपके हिसाब से तब से लेके अब में बिजनेस प्रैक्टिस में क्या फर्क है, इंडस्ट्री में ऐसा क्या चेंज हुआ है, और इनमें से क्या चीज आपको अच्छी लगती है एंड व्हाट यू डिसलाइक? चेंज तो मेरे ख्याल से आई थिंक कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और बिकॉज छोटे छोटे यूनिट्स काफी हो गए हैं तो अनहेल्दी कंपटीशन बहुत हो गया है. कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, डिमांडिंग भी हो गया है, और कई हद तक अनड्यू एडवांटेज भी लेने लगा है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट वी हैव. दैट थिंग हैज चेंज फॉर द वर्स. बट जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि आज के तारीख में प्रोफेशनलिज्म का वैल्यू भी होने लगा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से. आजकल कस्टमर्स अच्छे वेंडर के साथ डील भी करना चाहते हैं, प्रोफेशनल सेटअप के साथ में डील भी करना चाहते हैं. उनको कुछ प्रीमियम भी देते हैं, कुछ प्रेफरेंस भी देते हैं. प्रीमियम नहीं भी दे तो प्रेफरेंस जरूर देते हैं बिजनेस में. तो ये एक चीज बहुत अच्छी हुई है. हाँ, एक्चुअली ये बात तो है. एक कंपटीशन के अलावा एक ओवर सप्लाई का जो एक फैक्टर अपने इंडस्ट्री में है, आई थिंक उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है हमेशा से. हमेशा रहेगा. मेरे को लगता है ये चीज कभी चेंज होती मेरे को तो नहीं दिखती है, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में राइटली कहा कि एंट्री बैरियर लो है. जो भी बिजनेस में एंट्री बैरियर लो होता है उसमें कंपटीशन अनहेल्दी होता ही है. एंड उसमें आपको कंटिन्यूअसली इनोवेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली यू हैव टू बी ऑन योर टोज, एंड कुछ ना कुछ बेटर करना पड़ेगा आपको सरवाइव करना है तो. क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, या मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में केपेक्स बहुत हाई रहता है, तो दैट इज वन ऑफ द हाई एंट्री बैरियर्स. अपनी इंडस्ट्री में कैसा है, आपको एक फैब्रिक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर बनने के लिए कोई मशीनरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है.
आप मार्केट से ग्रे फैब्रिक खरीद के फिनिश करके उसको बेच सकते हो, या फिनिश फैब्रिक खरीद के उसको ब्रांडिंग करके बेच सकते हो, या कट पीस करके बेच सकते हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है प्रतीक कि एंट्री बैरियर नहीं है बोल के लोग एंटर कर रहे हैं। आज भी पूरे इंडिया में एमएनएस अप्रूव्ड या एचएनएम अप्रूव्ड प्रोसेस हाउस कितने हैं इतने बड़े भारत में, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी पुरानी है, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। आप पूरे इंडिया में यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स ऑफ वन हैंड कि पूरे इंडिया में एमएनएस अप्रूव्ड प्रोसेस हाउस कितने हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो ये भी तो ये दिखलाती है ना कि पोटेंशियल कितना है अभी। बोथ द साइड्स आर देयर, लो कैपेक्स है, हाई कंपटीशन है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें कैपेक्स ऐड कर पाते हो और थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाते हो तो पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है। सर जैसे शरद जी टंडन है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनके क्लाइंट है, उनके कंसल्टिंग क्लाइंट, जिनका बेटा ज्वाइन करा था उनका फैमिली बिजनेस, और शरद जी ने उनसे सवाल पूछा कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, मतलब आपको क्या इसमें स्कोप लग रहा है, क्योंकि बाकी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नॉर्मली ज्वाइन नहीं करना चाहते अपना टेक्सटाइल फैमिली बिजनेस। तो शरद जी का कहना था कि उनका जवाब इतना अच्छा था, उन्होंने बोला कि सर इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन है, एक आदमी ऊपर और नीचे का मिलाकर अगर 3 मीटर कपड़ा भी पहनता है तो 3 बिलियन मीटर्स का तो एटलीस्ट एनुअल कंजम्पशन है अपने देश में, और हमारी कंपनी बनाती रहेगी समझ लो मुश्किल से साल का 30 लाख मीटर, तो स्कोप की किधर कमी है। अब कंप्लीटली अग्री। तो पोटेंशियल आप अगर ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 बिलियन को वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये देखो कि 7 बिलियन के पॉपुलेशन में इंडिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन। दुनिया का पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है, प्लस टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर जगह नहीं है, तो स्कोप की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, आपसे एक चीज समझनी थी सर, जैसे कैन एंटरप्राइज प्राइमरीली फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, और अभी आप लोग ने गारमेंट्स में एक डाइवर्सिफाई कर रहे हो, और आपकी शायद काफी एडवांस स्टेज पर प्लानिंग हो गई है, शायद मशीनरी भी ऑर्डर हो गई रहेगी। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? ऑलरेडी आप एक सिंगल मैन टेक्सटाइल्स में इतना ग्रो करना इन इटसेल्फ इज अ बिग डील, उसके अलावा आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, प्लस आपका इतना एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहता है, जितना मैंने सुना महीने में 15 से 20 दिन तो ट्रैवल ही करते रहते हो इन डिफरेंट कंट्रीज दैट यू आर एक्सपोर्टिंग टू। आई थिंक आप शायद 15 या 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑलरेडी, लगभग शायद उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। और सो कमिंग टू द बेसिक पॉइंट कि कैसे मैनेज करते हो यार अपने, इफ यू लुक एट व्हाट पीपल आर डूइंग एंड इफ यू सी योरसेल्फ, आई थिंक वी आर नॉट इवन डूइंग 1 or 2% ऑफ व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड आर केपेबल ऑफ डूइंग। अपने जो कर रहे हो बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट यस इसमें और करने की स्कोप बहुत है। बट उसमें कुछ चीजें जो बेसिक होती है वो यही है कि आपको आपका टीम मैनेजमेंट, टीम अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बेसिक फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी चीज प्रतीक मैंने पढ़ी थी अभी कि अपने सब डिस्कस क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन भी था कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। अब यार आपके पास और मेरे पास टाइम तो उतना ही है कि टाइम अलग है। सही बात कैपिटल आप कैसे मैनेज करते हो पूछो तो समझ में आता है, क्योंकि हर एक के पास कैपिटल अलग है, किसी के पास X है, किसी के पास 100X है, तो उसका कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है वो अलग अलग होगा। बट टाइम तो सबके पास में उतना ही है, तो टाइम तो अपने को, तो व्हाट एसेंशियली इट कम्स डाउन टू इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट कम्स डाउन टू फोकस मैनेजमेंट। आपका फोकस क्या है और वो फोकस को आप कैसे मैनेज करते हो। मेरे को फैक्ट्री में लाख रुपए का कुछ एडिशनल खर्चा लगता होगा, वो मेरे को बचाना है कि मेरे को मार्केटिंग में 5 लाख रुपए का एडिशनल इनकम हो सकती है, मेरे को वो देखना है कि मेरे को नया प्रोजेक्ट लगा के 2x ग्रोथ मिल सकती है जिसमें बॉटम लाइन भी हेल्दी है, मेरे को वो देखना है। अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने को क्या देखना है। मतलब टीम मैनेजमेंट एंड फोकस मैनेजमेंट, ये दो चीज बहुत जरूरी है फोकस मैनेजमेंट, क्योंकि अगर फोकस होगा तो टीम भी आ जाएगी, कल्चर भी आ जाएगा, बिकॉज सब फोकस से रिलेटेड है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू दैट आई थिंक, बिकॉज समय तो उतना ही है, समय किसी का एक्स्ट्रा तो है नहीं, और उसमें डेफिनेटली कुछ चीजें छूटेगी, कुछ चीजें अच्छे से होगी, कुछ चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट ठीक है, सबको मिला मुलू के वो इंग्रेडिएंट्स को मिला के लास्ट में जो खाना बनता है वो काम आता है। हर इंग्रेडिएंट परफेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, बट उसको मिला के लास्ट की डिश परफेक्ट तो नहीं होती है, बट अच्छी बननी चाहिए। परफेक्ट तो कभी होती ही नहीं है, बट अच्छी बननी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा बन जाना चाहिए। हो सकता है ये डिश नहीं बनेगी, अगली डिश बनेगी। वेरी नाइस सर।
एक चीज बताइए सर, जैसे अगर ऐसी कोई एक चीज है जो आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा हो उससे, या आपकी लाइफ बदल गई होगी उससे, और या कोई ऐसा फेलियर जिससे आपने बहुत कुछ सीखने मिला आपको। फेलियर तो यार अगर मेरे को पूछो तो लाइफ इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स। प्रैक्टिकली एवरी डे इवन टुडे फेलियर ही फेस करते हैं। एक्चुअली सक्सेस is equal to a series of failures come together, it converts into some success. Failure तो on a daily basis होता है, but yes काफी चीजें सीखी है। One of the things जो शायद पहले सीखनी चाहिए थी, जो बहुत लेट सीखा हूँ, is we always overestimate the short term and underestimate the long term. मैं रोज 20 पुशअप्स करने से जो साल भर में इम्पैक्ट आएगा वो मैं कभी सोच नहीं पाता हूँ। होता यही है कि अपने शॉर्ट टर्म को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में कभी सोचते नहीं है। जो वॉरेन बफेट सेज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिसाइड्स दैट आई थिंक फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक इज build relationships, build trust, build your personal character, build good habits. Good habits take you very very far. Build very very strong emphasis on building relationships. I think these are the few things which I've learned pretty late, but yes, that is what I've learned. ओके, तो सर एक स्टेटमेंट है जो लोग अक्सर कहते हैं, एंड आई वुड वांट योर कमेंट ऑन इट। द स्टेटमेंट इज टेक्सटाइल सेक्टर हैज बीन गोइंग थ्रू अ डाउनफॉल। आपकी क्या सोच है इस बारे में? अगर मैं देखूं इचल करंजी में, द काइंड ऑफ वेल्थ दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्सटाइल्स is unimaginable. It is the same thing probably in Tarapur or Bhiwandi. Same thing everywhere. So I think the statement is misconstrued. It is not textile is going through a downtrend. I think textile is always under transformation. And we are not able to be a part of the transformation and we feel the pain. एंड इचल करंजी में हम लोग देख रहे हैं यार, आज आप सोचो पूरे दुनिया में इचल करंजी एक ऐसी जगह हो गई है जहां पे 10 से 12 हजार एयरजेट के ब्रांड न्यू लूम्स इंस्टॉल्ड है, जहां पे आप जॉब चला सकते हो। और एवरी सिंगल ईयर अनदर 1000 लूम्स आर गेटिंग इंस्टॉल्ड एंड आई एम टॉकिंग न्यू लूम्स। तो कुछ ना कुछ तो सही होता ही होगा ये इंडस्ट्री में। ये जरूर है कि इट इज ऑलवेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। देयर इज ऑलवेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दैट इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन दैट इज रिक्वायर्ड। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारी फैक्ट्री लगी थी 1986 में, पापा जी ने जो लगाई थी। तो जब हमारी फैक्ट्री लगी थी तो हमारे पास सबसे पहले लूम थे, वो भिवंडी के आते थे, आईकॉल के 4x1 के, जो शटल चेंजिंग लूम आता था। तो उसमें 4x1 के शटल चेंजिंग लूम आता था। तो वो पापा जी ने चलाए काफी साल तक। बाद में लगा हमें कि यार हम लोग के नहीं बेच पा रहे कपड़ा उसका, या रेजिस्टेंस आ रहा है, या हम लोग सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे। तो वो लूम बेच के सिमको लगा लिए थे। फिर सिमको में शूटिंग वूटिंग बनाई, फिर सिमको के लूम्स कुछ साल चले, फिर वो बेच दिए। उसमें भी बहुत रेजिस्टेंस आने लगा बाद में। तो बाद में हम लोग ने रूटी भी लगा लिए, छोटे पन्ने के रूटी भी लूम, जिसपे इंटरलाइनिंग बनता था। फिर इंटरलाइनिंग केम टू इट्स एंड कि भाई अब इसमें वायबिलिटी नहीं है, तो वो चेंज करके देन वी वेंट फॉर सुल्जर्स। नहीं सॉरी, 2005 में सुल्जर लगाए, और बाद में समझा यार ये सुल्जर भी अभी हमारे बस का नहीं, तो 2011 में हमने सुल्जर निकाल दिए और 2013 में एयरजेट लगाए। तो मेरे को लगता है कि हम लोग की प्रैक्टिकली एक फैक्ट्री होगी जो सेम शेड में, जो जिसमें 4x1 आईकॉल लगा था 1986 में, वही फैक्ट्री को अपग्रेड हमने 5 बार करके हमने उसमें टेक्नोलॉजी एयरजेट का लगा के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट बनाया। सो अगर हम लोग नहीं करते तो शायद आज सर्वाइव नहीं कर पाते। अपना अपग्रेडेशन, मशीनरी अपग्रेडेशन किया, प्रोडक्ट चेंज करते गए, कस्टमर चेंज करते गए, तब जाके सर्वाइव कर पाए। इट्स ऑलवेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो कस्टमर है, आज अभी जो मेरे आज के कस्टमर्स है, ये पूरे के पूरे कस्टमर्स पिछले 4 साल में जुड़े हैं, जबकि कंपनी 40 साल पुरानी है। उसमें कुछ कस्टमर्स तो ऐसे हैं जो पहले टच में थे, काम नहीं होता था बिकॉज हमारा प्रोडक्ट दूसरा था। आज वो रिलेशनशिप बन के आज उनके साथ काम करने लग गए हम लोग। सो अगर हम हमारा पर्सनल जर्नी अगर देखें तो 2014 से अभी जो कस्टमर और प्रोडक्ट बेस है वो तो हमारा पहले कभी था ही नहीं। सो एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू चेंज, विलिंग टू अडेप्ट, आई थिंक देयर इज ऑलवेज वर्क अवेलेबल। तो अभी जैसे कुछ कंपनीज है जिन्होंने रिसेंटली या लास्ट 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इंडस्ट्री में, या कुछ कंपनीज है जो शायद वाइंड अप भी हुई है, बैंक्रप्सी में भी गई है। आपके नजर में सबसे मेन कॉमन रीजन क्या होगा फॉर कंपनीज फेलिंग इन दिस इंडस्ट्री? ऑनेस्टली प्रमोटर की नियत नहीं होती है, बाकी तो मेरे को कोई रीजन बहुत कम
मतलब 9 आउट ऑफ 10 केसेस में प्रमोटर की नीयत नहीं होती है। एक आध केस होता है जहाँ पे जेन्युइनली बैड लक होता है या ओवर लेवरेज होता है या कहीं बैड डेट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट सीन। बट 99 केसेस में तो 99% केसेस में ये देखा है कि प्रमोटर की नीयत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जाके ही गेट्स कॉट इन सम और द अदर साइकिल एंड ही गेट्स वाइप्ड आउट। मतलब आदमी चाहे तो कभी भी ग्रो कर सकता है, कितना मेरे भी को गिर के लगता है अगर वापस उठ आदमी की सकता है। नीयत है, अगर ही इज कमिटेड टू द बिजनेस, नॉर्मली जल्दी से गिरता नहीं है। बिजनेस में कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कोई लग सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि कंपनी वाइप आउट हो जाए। और टेक्सटाइल में तो मैंने खास करके जितना little bit I know, I have found more people who have gone out of business because they were never really committed to the business. They were committed to personal wealth, not to the business. बांग्लादेश के हमारे कस्टमर ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी. So this customer, they have about 70,000-80,000 employees and they're all first generation. They were ex bankers. तो जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, that time they were managers in a bank. तो जब इंडिपेंडेंट हो गया बांग्लादेश, उसके बाद में दे गॉट टुगेदर, किसी से पैसा मांग के जब गारमेंट की अपॉर्चुनिटी है तो गारमेंट फैक्ट्री चालू करी उन्होंने एंड ऑल दैट। नाउ दे आर हैविंग 80,000 पीपल। तो उनको मैंने पूछा कि यार हाउ कम आप लोग इतने बड़े हो गए फर्स्ट जनरेशन में और इंडियंस अभी तक फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ही सेड वेरी सिंपल थिंग, बोले यू पीपल ऑलवेज हैड मीट अंडर योर टीथ एंड वी वर ऑलवेज हंग्री। तो अगर हम करते नहीं तो मरते, तो हमको करना था तो हमने सही चीज की। आप लोग के यहाँ पे प्रोमोटर्स पहले से रिच थे, उन्होंने बिजनेस चलाया, चलाने के लिए चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं है, बैंक को थमा दिया। वो कमिटमेंट कभी नहीं था आप लोग का, एंड आई फाइंड दैट टू बी ट्रू टू क्वाइट एन एक्सटेंट। तो अभी सर अपने अगर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जैसे हर बिजनेस इम्पैक्ट तो हुआ ही है, जैसे अपना पहले भी डिस्कस हो रहा था अभी पॉडकास्ट के पहले कि हाउ एवरीबडी हैज गॉट इम्पैक्टेड एंड अभी किस तरह से लोग पोस्ट लॉकडाउन प्रिपेयर करेंगे, दैट विल डिटरमाइन वो कितना सक्सेस होते हैं, कितना जल्दी ग्रो करते हैं। हाउ डू यू सी बिजनेस पोस्ट लॉकडाउन एंड कैन एंटरप्राइज में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हो या किस तरह से तैयारी कर रहे हो लॉकडाउन के खुलने के बाद ग्रो करने के लिए? पोस्ट लॉकडाउन आई थिंक वी आर लुकिंग एट मैसिव चैलेंजेस, नो डाउट अबाउट इट। हाउ इट विल पैन आउट वी डोंट नो बिकॉज इट्स अ ब्लैक स्वैन इवेंट। आगे कौन सी कंट्रीज खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, बाइंग पैटर्न्स क्या रहेंगे, चेंज होगा। तो हाउ बिजनेस शेप होगा बोल नहीं सकते, बट बेसिक फंडामेंटल ये है कि भाई ठीक है, कपड़ा है, अपैरल है, बिकेगा, बिकना भला ही कम हो जाएगा बट बिकेगा। तो दैट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द बिजनेस। नाउ हाउ आर वी प्रिपेयरिंग इज वेरी क्लियर। हम लोग, हमारी जो क्लोज टीम है, सीनियर मैनेजमेंट है, उनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं कि भाई चैलेंजेस है, यू हैव टू टेक अप द चैलेंज। वी विल स्टिल नॉट चेंज आवर ग्रोथ टारगेट। एक बार का तो वी विल कीप इट एज इट इज, भला ही अग्रेसिव साउंड करे, स्टूपिड साउंड करे, बट हम लोग का जो ग्रोथ टारगेट है हम वही रखने वाले हैं। जो साल का टारगेट था हम वही रखेंगे। बस ये है, सबको 50-60% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। और ये सबको बोला है ऑलरेडी अभी, और वापस जब चालू होगा वी विल हैव अ ग्रुप सेशन टुगेदर, तब सबको यही कहा जाएगा कि नाउ एवरीबडी हैज टू अप देयर प्रोफाइल। आप जो काम अभी कर रहे हो उससे हायर प्रोफाइल का काम आप करोगे, 50% एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, तो ही जाके अपने सर्वाइव होंगे और सक्सेस होंगे। सो दैट इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट। प्लस स्पेसिफिक्स है, जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इट हैज टू गेट मोर एफिशिएंट, मोर कस्टमर ओरिएंटेड, और जाके कस्टमर से समझ के उनके लिए क्या बेटर हम कर सकते हैं। दोज आर ग्रैन्युलर थिंग्स, बट बेसिक कंपनी लेवल पे तो यही है कि वी हैव टू अप आवर स्किल्स, up our profile. Every single person has to up their profile, and last it will come down to one thing, is everybody in the company for the next 6 months either has to save money or has to make money. So whatever either of the two categories they have to fit themselves in. उनको लगता है कि वो पैसा बचाने वाले हैं किसी तरह से तो काम करे, या किसी तरह से पैसा बनाने वाले हैं कंपनी के लिए तो काम करे। अगर ये दोनों चीज में अगर उनका रोल फिट नहीं होता है तो then they are not fit for the company. राइट सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जिधर आई थिंक मोस्ट कंपनीज, मतलब ज्यादातर कंपनीज ऐसी है जो अपने ग्रोथ फोरकास्ट या ये साल के प्रोजेक्शंस रिवाइज कर रही है। कुछ कंपनीज 50-60% कट कर दी है या कम कर दी है इस फोरकास्ट को। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि रादर देन डूइंग दैट, हम अगर 50% ज्यादा मेहनत करेंगे तो आज भी वो अचीव कर सकते हैं। पॉसिबल तो है, बिकॉज आई लुक एट इट दिस वे,
अपने पास में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों मार्केट है। हमको कितना बिजनेस चाहिए मेंटेन करने के लिए या ग्रो करने के लिए? एक 10-20-25 लाख मीटर एक्स्ट्रा चाहिए साल का, उतना हम नहीं ला सकते। आज चाइना में कितनी कंपनीज बंद होगी, आज अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस अफ्रीका, अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया काफी कंपनीज बंद होगी, बड़ी कंपनीज बंद होगी या डिले होके चालू होगी। तो हमारे को कितना बिजनेस चाहिए? हमारे को तो हार्डली थोड़ा सा बिजनेस चाहिए। एक 50 लाख मीटर एक्स्ट्रा ला लिया तो हमारी तो ग्रोथ हो गई, तो वो तो कर पाना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट सर। सो आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर यू नाउ। एक तो ये कि आपकी यंग जो है, जो अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने की सोचते हैं या नया बिजनेस चालू करने की सोचते हैं या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की सोचते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? I'm currently undergoing a training program from University of Michigan। तो ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ मैं उनका एक। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सीखने को मिला कि यू ऑलवेज क्वेश्चन द व्हाई, कि आप क्यों करना चाहते हो। और सेम चीज मैं अभी इसकी किताब पढ़ रहा हूँ, सत्या नदेला की। ही इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। So he said when he became the CEO, the first question he had was, why does Microsoft exist? So very, very granular, very, very organic. From there he said, I have built on the culture। कि भाई सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करे कि भाई मैं ये क्यों करने वाला हूँ या क्यों करना चाहता हूँ। तो अगर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन होना चाहिए भाई क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, why should I join and what should I do if I join। तो आई थिंक बेसिक क्वेश्चंस अगर आंसर करते हैं तो ये अपने को अपने आप ही उसका जवाब मिल जाएगा। देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। समबडी एक्सपेक्ट्स एक्स फ्रॉम लाइफ, किसी को है 10x की उम्मीद। अब वो 10x वाले को 9x मिलता है तो उसको लगता है वो फेलियर है। और यहाँ पे जिसको x की उम्मीद है उसको उसको अगर x भी मिल जाता है तो उसको लगता है वो बहुत सक्सेसफुल है। नथिंग इज राइट और रॉन्ग, बट डेफिनेटली आप अगर करियर अपने फैमिली एंटरप्राइज में करना चाहते हो तो अपने को ये समझना चाहिए कि आप आपके जिंदगी का 60% हिस्सा और वो 60% हिस्से का 80% ऑफ योर अवेक टाइम आप कोई एक्टिविटी में स्पेंड करने वाले हो। तो वो एक्टिविटी क्यों करनी चाहिए और व्हाट आर यू दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एक्टिविटी and what is it that activity is contributing to your life? I think very elementary questions, if Right, you sir. answer you should get the answer। And my last question to you is, जैसे आपको पता है, I'm the founder and CEO of the Yarn Bazaar, which is a B2B holistic yarn marketplace. So what would be your 3 advice for us? Honestly, I think what you are doing is really, really phenomenal. The way you have connected with everybody and built on your relationships, I think across and from scratch is commendable, because it is ultimately these relationships which are going to take you far. The nature of business, the business model will keep evolving, will keep changing, will keep transforming, but relationships will always remain. So what you are doing right is really right. Baki, I think you have to just keep learning and evolving, never be fixated on whatever business plan we started off with. The big picture has to be very clear. The way could change. आप एक चीज ट्राई कर रहे हैं, फिर कल दूसरा ट्राई करिए, फिर चौथी चीज ट्राई करिए, पांचवी चीज ट्राई करिए। You never know what will work, but the big picture should remain same. The dream should never die. The dream has to remain intact. I think you guys are doing a wonderful, wonderful job. Thank you so much, This sir. lockdown That means a period, lot coming from the you. effort that you are taking to connect everybody, series that you are running, the knowledge sharing that is happening, I think Pratik, it is phenomenal. You are definitely doing something right. We just trying to do the little bit that we can। मतलब अभी इस टाइम जो है, जब मैक्सिमम लोगों के पास टाइम है, हम बस यही सोच रहे हैं कि किस तरह से सबको कनेक्ट करे, वैल्यू शेयर करे। ये जो छोटी चीजें होती है ये तो मायना रखती है, बड़ी चीजें तो सभी करते हैं। वही एक्स फैक्टर तो वो छोटी चीजें होती है, वही एक्स फैक्टर होती है। ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने काफी टाइम दिया एंड आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन। लॉट ऑफ टेकअवेज, लॉट ऑफ की टेकअवेज फ्रॉम दिस सेशन। बिफोर वी एंड दिस, आई हैव अ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है कि अ स्मॉल फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। सेकेंड इज, सपोज अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने आपको असाइनमेंट दिया टू डिसाइड अ टैगलाइन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टैगलाइन में मजा नहीं आता यार। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हाथ में मिले ना तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करे। साला 17-18 बिलियन डॉलर का अपैरल एक्सपोर्ट है, 100 बिलियन पे जाना चाहिए।
ये tagline wagline, I don't believe in taglines. I really don't believe in outer appearances. The substance is more important. So I know it doesn't answer your question. It's not a rapid fire, but No, I think it very well answers the question, and I think that's a very strong point. कि internally इस तरह का ग्रो काम करो नहीं, कि ग्रो industry तो grow यार हो. सब होता है, इन्फ्लेशन से ही सब ग्रो हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. Exponential growth. ग्रो तो यार Transform, right. सभी ग्रो That हो is, रहा I है. think, देयर the इज right अ, word. आई मीन वी शुड ट्रांसफॉर्म यार, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन. Right. Thank you very much, Pratik, for having me. I'm really humbled and honored that you find it worthwhile having this. But thank you so much, Pratik. Thank you so much to you, Take sir. care, Thank you Pratik, so and much all for the your very time and best for to you. doing this. Yes, sir. Take care, sir.